بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے ہوں اور یہ کئی دنوں سے یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو نئی بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی نفری میں لوگ ہیں، اور اس وقت تو ذرا صبح کا ٹائم ہے تو یہ بعد میں بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ادھر یہ جو انتظامیہ ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو سی ڈی ہاسپٹل نے کام کیا ہے، ان کو ڈسپینسری بنا کے دے دی ہے، مطلب عارضی طور پہ، یہ اچھا ہے۔ اب ادھر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کو کم از کم ادھر کوئی واش روم کا ہے تو کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا ادھر جنگل ہے اور ہزار طرح کی بیماریاں، مطلب ایک علیحدہ ایشو بنے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کوئی ادھر لاٹرین نہیں ہے، ادھر ایک کسی نے بنائی ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کسی نے وہ جو واش روم پبلک بنا کے دیا ہے وہ کون ہے۔ اور ناظرین، پھر میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو ویسا تو خیر سی ڈی اے نے پورے اسلام آباد پہ قبضہ کروا لیا، سی ڈی اے ملازمین نے خاص کر، لیکن اگر ادھر انٹرنیشنل لیول کے لوگ بھی آتے ہیں اور خاص کر یہ جو پیشہ ور ہیں ان کے لیے نہیں، لیکن یہ ادھر کم از کم کوئی شیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ احتجاج کرنا تو ہر ایک بندے کا حق ہے۔ اور تو میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ یہ واش روم کسی نے بنا کے دیا ہے، کون ہے یہ میں دکھاتا ہوں۔ اب اتنی نفری میں ایک آدھ واش روم جو ہے، مطلب یہ چلو انہوں نے عارضی بنا دیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم یہ ادھر ان کو چاہیے کوئی 15-20 واش روم ہونے چاہیے، کیونکہ احتجاج کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، اور دور دراز سے لوگ بڑی امید رکھ کے آتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں پہنچیں گے تو بڑا انصاف ملے گا۔ یہ دیکھیں غلاظت کے ادھر ڈھیر مارے ہوئے ہیں، تو ادھر اگر کوئی یہ تھوڑا سا بن جائے، یہ دیکھیں مطلب کیا بنا ہوا ہے یہ۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں تھوڑا سا کوئی شیڈ، بارش آئے، کوئی دھوپ ہو، تو آخر یہ انسان ہے نا، کوئی حیوان تو نہیں ہے۔ تو آگے بھی میں کچھ آپ کو اور دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ میرا نام اکرام اللہ ہے اور میں جو ہے نا بنو سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شرکت کروں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ ہاں، میں ان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے لیے، کیونکہ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں نا، تو ان کے اوپر ایک مایوسی، ایک اس کے اوپر جو ہے نا ایک پیسیمزم کی صورتحال سی ہوتی ہے نا۔ اچھا۔ ہم تو بہت دنوں سے جو ہے نا جب سنتے تھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے نا، تو یہ لوگوں کے مسئلے جو ہے نا اسلام آباد کے محلوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو ہے نا جب یہ لوگ وہاں سے آ کے بیچارے جو ہے نا وہاں سے نکل کے اتنی سردی میں ادھر اسلام آباد میں آ گئے، تو ہم نے پوری دنیا نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد والوں نے اس کا کس طرح استقبال کیا۔ صحیح ہے۔ اور رات کی تاریکی میں ان پہ جو ہے نا گولیاں جو ہے نا واٹر کینن اس پہ یوز کی۔ یہ کوئی مہذب طریقہ ہے کیا پاکستان کے آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم ایک فیڈریشن ہے جو ہے نا، ہم ایک فیڈریشن، اس فیڈریشن میں بلوچ اور پشتونوں کا بھی کوئی حق ہے۔ بالکل۔ کس طرح جو ہے نا ہم اس فیڈریشن کو، اگر یہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں 1971 سے جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا کب سے شروع ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں آپریشن کیا، وہاں سے جب بلوچوں پہ جتنا ظلم ہوا، پھر 2006 میں اکبر بھوٹی صاحب کو قتل کیا گیا۔ مسئلے اس طرح حل نہیں ہوتے، ہم نے مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ لوگ آئے تو یہ ایک جو ہے نا جو ہماری بہن ہے ڈاکٹر صاحبہ مہرین بلوچ صاحبہ، وہ بلوچ اور پشتونوں کی اتنی جو قدامت پرست سوسائٹی ہے، وہاں سے یہ نکل کر اس نے اپنے جو ہے نا ایک سوشل موومنٹ شروع کی، اور اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو ہے نا اپنے ملک میں زندگی مانگتے ہیں۔ لوگ دنیا جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جی۔ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا آپ کی ایموشنز، اسٹیٹ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ویل بینگ کی مکمل جو ہے نا قدر کرے گی۔ یہاں پہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی جو ہے نا لوگ جو ہے نا زندہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا۔ تو بھائی جان، آپ کرتے کیا ہے، آپ کا کیا پیشہ ہے؟ میں تو اس وقت جو ہے نا اسٹڈی کرتا ہوں یہاں پہ، اور میں نے جو ہے نا یہاں پہ ضروری سمجھا کہ ہم ان بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا مطلب اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔
अब इन भाइयों के चेहरों को देखे, हाँ। इन भाइयों के चेहरों पे जो मुझे लग रही है ना, इन भाइयों के चेहरों पे जो चीज मुझे उदासी ज़ाहिर चीज है। लग रही है ना, ये आपको दिखा देते हैं ना कि इन लोगों ने जो है ना क्या जो है ना उनको सताया गया होगा। बहुत शुक्रिया है मेरे भाई आपका। मैं ये भाई भी, आप उर्दू जानते हैं? आप उर्दू जानते हैं? जी मेरे को जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान से। तहसील से। जी मैं एक बलोच हूँ, मैं एक ईमानदार शख्स हूँ। जी मैं अल्लाह और रसूल कहता है कि जो बंदा इंसाफ होता, अदल, हुकूमत का अदल इंसाफ मिलते हैं, अगर उसका जो पार्लियामेंट है, उसका रियासत है पाकिस्तान का, वो इस्लामाबाद है, लेकिन जे इसका जो बड़े लोग हैं उसको यानी इंसाफ देना, बलोचों को इंसाफ देना चाहिए। ठीक है। बलोच वो बलोच है, उसको बलोचों को, औरत को किसी ने उसका दुपट्टा को हाथ नहीं लगाया। नहीं सही। लेकिन मेरे बलोच, मेरे पंजाबी हो, मेरे पख्तून हो, लेकिन ज्यादती जो करता है उसको अल्लाह इंशाल्लाह एक दिन पकड़ जाएगा। जरूर। आपका कोई बंदा कोई मतलब लापता है? किस मेरे बंदा लापता नहीं है। मैं इस दर्द पे आया हूँ, किसी मुसलमान के बंदे सारे। अच्छा, मतलब आप उनके साथ आए हैं? जी हाँ, जी, जी। हमदर्दी के लिए आए। ठीक है। वाराणसी से रात को आया, मेरे को इस बात मालूम नहीं मैं वापस सलामती से जाऊँ या मैं सलामती से, यानी इतना मेरे को मासूम नहीं था कि मैं सलामती इधर पहुँचूँ। ठीक है। मेरे अपने माँ मेरे को दुआ किया और कुरान शरीफ मेरे बैग पे रखा कि तुम जाओ ये मिस्किन को साथ सलाम करो। सिर्फ सही बात। ये जो महरंग बलोच ने उठाया, ये मजलूम है। हमारा बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट अवारा में जाओ, ऐसा मजलूम नहीं है, उसका 2-3 बच्चा गैब नहीं है, वो गैब है। अच्छा। गैब हो चुका है। ऐसा मुसलमान नहीं है। आजकल हम लोग तबलीग भी करता है, इबादत भी करता है, लेकिन हक का बात कोई नहीं करते। हक का बात करने वाला कोई नहीं है। आज इस्लामाबाद जो हक का बात करने वाला है, आ जाओ पार्लियामेंट में बात करो। भाई बलोचों को रिहा करो, बलोचों को इज्जत दो। बलोच इस पाकिस्तान सरजमीन का बलोच है, पंजाबी इस सरजमीन का है, पश्तून इस सरजमीन का है। क्यों बलोच इतना जज्बाती है? क्यों बलोच के ऊपर जुल्म हो रहा है? हमारा एफसी माए बहने रोड पे उतारता है, बेंचोत कहाँ जा रहा है? अपने सरजमीन डॉक्टर पे जाते हैं। हमारा बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट अवारन में आओ, आपको गोली सरकारी नहीं मिलेगा, उधर रोड नहीं मिलेगा। सही बात। भाई उधर हम अपने घर में, हमारा भाई अगर मिसाल वफात होगा, उसका हम लाश अपने घर नहीं छोड़ सकते हैं। अपने लाश जनाजा अपने घर पे नहीं छोड़ सकते हैं। किसी अवारन भाई को पूछो। लेकिन मैं अवारन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मैं पहले बंदा हूँ, मैं पहले बेतालीम अनपढ़ बंदा हूँ, इधर आया हूँ। किस लिए आया? इंसानियत के लिए आया। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं, मैं जी भाई। अच्छा, मैं अपने मुख्तदिर खलकों को ये बात बताना चाहता हूँ जी कि ये रियासत जो है ना, ये एक वफाक है। और वफाक जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो है ना आइन होता है। बलोच है, पश्तून है, कोई भी है ना, ये आपको पता है किस तरह जुड़े हुए हैं। ये कि कोई एक नस्ल नहीं है, एक आइन हमने जुड़ा है ना। अगर उस पर आइन पे अमल नहीं होगा ना, हमने जो है ना पार्लियामेंट में कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए से इस मसले को हल करना है। सही है। 2004 से जो है ना ये मसला शुरू हुआ है और अभी तक ये हल नहीं हुआ। ताकत के जरिए ये मसले हल नहीं होते। सही है। जो है ना, जब भी जो है ना कुछ मसले हल करने हैं तो आपने जो है ना पार्लियामेंट में इनको रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, उनके जो असली नुमाइंदे हैं। जी। इस तरह ना हो कि आप बलूचिस्तान में जो है ना एक जो है ना आपको कोई जो है ना तैयार करके उनको पार्लियामेंट में भेज दे, जिस तरह के हमारे वजीर आजम साहब है, जिस तरह के हमारे वजीर दाखिला साहब है सरफराज बुगटी। और ये जो बलूचिस्तान में एक जो है ना बैठा हुआ है, ये कहते हैं कि ये बलोच जो है ना ये दहशत गर्द है और ये घरों से निकल कर इसको BLA में डायल करते हैं। हाँ, कुछ जुर्म है तो अदालत में लाओ यार। हाँ, ये जो है ना अदालत जो है ना यहाँ पे जो है ना उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। अदालत किसी पे जुर्म साबित करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिविलाइज सोसाइटी है, आप यूरोप में जाए, आप चाइना में जाए, वहाँ पे किसी पे भी जो ब्लेम आता है ना, उसको पहले अदालत में उसको प्रूव करना होगा। सही बात। जब अदालत में उस पे ब्लेम प्रूव कर तो अकॉर्डिंग टू द आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस पे जो है ना अमल दरामद करना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको उठा दो और फिर सालों बाद जो है ना गायब हो जाए। सही बात है। ये जो है ना इस मुल्क के अंदर मैं खुद पठान हूँ, मैं खुद पश्तून हूँ, और आगे मैं इस मुल्क का जो चेहरा, जो फ्यूचर देख रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ा तारीख है। वो बाइफरकेशन है। वो जो है ना डिसइंटीग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। हमने जो है ना मशरकी पाकिस्तान सन 1971 से कुछ नहीं सीखा। हमने जो है ना यहाँ पे जो अवाम शेख मुजीबुर रहमान थे, वो क्या कहते हैं? वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे, वो ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन चाहते थे।
अब ये बात मुझे कौन यानी समझाए? आपको ये डर है कि कहीं फिर वही चीज न बन जाए। हाँ वही चीज ना आ जाएंगे, हमें जियो पॉलिटिक्स से निकल के जियो इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। सही है। क्योंकि गवादर जो है ना ये इंडस्ट्रियल हब है, बिल्कुल। चाइना जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला रही है। हमने ये जो है ना मिलिटेंसी फोर्स और ये चीज़ें इसको ख़त्म करके और ये जो है ना इसको ख़त्म करने हमने एक कंसेंसल बिल्डिंग और पीपल जो है ना लोगों पे इन्वेस्ट करना होगा। बहुत शुक्रिया। लोगों की डेवलपमेंट पे जो है ना काम बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वहाँ के तालीम पे हम काम करना होगा, तब जाके ये मुल्क आगे बढ़ेगा और ये मुल्क जो है ना रीजन में एक मीनिंगफुल स्टेटस तब जो है ना हासिल करेगा। क्योंकि आपके पास जो है ना जो पड़ोस में जो डेवलपमेंट हो रही हाँ, है नहीं वो उसके बहुत साथ बड़ा जो है ना लंबा फिक्र है। इसके साथ जो है ना आपने मुकाबला करना है। आप जो है ना आप देखिए बांग्लादेश की जो फेडरल जो उनके पास जो डॉलर है वो आपको पता है कितने हैं? जो आप वॉर जो है ना वो खुशहाल हो गए हैं। वॉर की जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गई है। बांग्लादेश के पास 74 अरब डॉलर सरप्लस रिजर्व है और इंडिया के साथ कितने आपको पता है? 600 अरब डॉलर। अब दुनिया जो है ना कहाँ पे जाती है? सही बात है। दुनिया वहाँ पे जाती है जहाँ पे जो है ना मार्केट हो। बहुत शुक्रिया। ये भाई भी मैं काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। कितने दिन हुए हैं आपको इधर आए? हमारे 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन हो गए। शौकी टीवी के तवस्सुम से मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, सरफराज बुगटी साहब जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते जी हैं, जी। सद्दाम हुसैन भी एक लीडर था हाँ जिसने एक औरत की आंसू उसने बर्दाश्त नहीं, उसने एक आंसू नहीं बर्दाश्त कर सका है। सुबह उसने इसराइल पे कितने मिसाइल डाल दिए। तो ये लोग यहाँ अपने महलों में बैठे हुए हैं, अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, सुकून से खाना खा रहे हैं, दावतों पे जा रहे हैं। हमें अफसोस है कि इनको इन बच्चों के आंसू नहीं नजर आते हैं। अच्छा सॉरी मैं इधर बात आपकी काट रहा हूँ, ये इधर से ही शुरू करना। तो वजीर आजम तो इस वक्त जो है वो तो मतलब बलूचिस्तान से आप कोई वैसे मुनासिब नहीं उन तक नहीं पहुँच सके हो? नहीं, उनको आना चाहिए था। जी तो नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा। नेक दुआओं के साथ मलक मोहम्मद नवाज सोकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।